عصمت چغتائی کی کہانی اپنا خون۔ سمجھ میں نہیں آتا اس کہانی کو کہاں سے شروع کروں۔ وہاں سے جب چھمی بھولے سے اپنی کنواری ماں کے پیٹ میں پلی آئی تھی اور 4 چوٹ کے مار کھانے کے بعد بھی ڈھٹائی سے اپنے آسن پر جمی رہی تھی، اور اس کی میاں نے اسے اس دنیا میں لانے کے بعد اپلوں کے تلے دباتے دباتے ممتا کی انجانی سی کیل کلیجے میں چبھنے پر چھاتی سے لگا لیا تھا، یا وہاں سے جب چھمی کی ماں کو جمن مردار خود از راہ کرم بیاہ کر لے گیا تھا، کیونکہ تلے اوپر اس کی 3-4 بیویاں ٹھکانے لگ چکی تھیں، اور اس کی اندھی ماں کی دیکھ بھال کے لیے اس کے 3 لڑکے بہت چھوٹے تھے، اور اس وقت چھمی بھی اپنی حرفہ ماں کے ہاتھ ٹین کی صندوقچی اور مرمروں کی پوٹلی کے ساتھ بیل گاڑی میں دھری جمن کے گام پہنچ گئی تھی، بالکل اسی طرح جیسے وہ ایک دن اپنی الہڑ ماں کی کوکھ میں پہنچ گئی تھی۔ یوں تو کہانی وہاں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے جہاں لگان نہ دینے کی وجہ سے نائب نے جوتوں کی تڑا تڑ سے جمن کا جوار باجرے سے بنا ہوا اودا اودا خون ناک کے راستے بہہ نکلا تھا، اور کوئی راستہ نہ پا کر اس نے 13 برس کی چھمی کو اس کی ماں کا لہنگا پہنا کر 16 برس کی عورت بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی، اور پھر نائب کے جوتے تڑ تڑانا بند ہو گئے تھے، اور چھمی محل کے زنانہ شاگرد پیشے میں یوں پہنچ گئی تھی جیسے وہ ہمیشہ وہاں پہنچنے کی عادی تھی۔ نہیں، شاگرد پیشے میں تو کہانی بالکل اتھل پتھل ہونے لگی تھی۔ دوسری باندیوں نے اس کا لہنگا اٹھا اٹھا کر اس کا خوب کھیل بنایا تھا، جیسے پنجرے میں نئی چڑیا ڈال دی جائے تو ساری چڑیاں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں، اسی طرح چھمی پر ٹھونگوں کی بوچھار ہونے لگی۔ مگر چھمی پھولوں کی سیج پر تو پلی نہ تھی جو چٹکیوں تمانچوں کو خاطر میں لاتی، اور نہ لہنگا اٹھ جانے سے اس کی شان میں کوئی بٹا لگ جانے کا خطرہ تھا۔ لہنگے سے اسے یوں بھی کوئی خاص دلچسپی نہ تھی۔ ابھی چند سال پہلے تک وہ صرف میلے ٹھیلے کے موقع پر گھگریا پہنتی تھی، جو لوٹتے وقت فوراً اتروا لی جاتی تھی کہ کہیں کیچڑ دھول میں ستیہ ناش نہ لگ جائے۔ اس کا روزانہ کا لباس چند چیتھڑے تھے جنہیں وہ لنگوٹ کی طرح کس کے باندھ لیا کرتی تھی۔ ماں کے گھیردار لہنگے سے اسے قطعی دلچسپی نہ تھی۔ پھر نیفے میں بسی جوئیں الگ کھسوٹ رہی تھیں۔ جب لونڈیاں ہنستے ہنستے تھک گئیں تو نئی شرارتیں ایجاد کرنے لگی۔ اری نامراد، تو نے خانم صاحب کو مجرا کیا کہ نہیں؟ گل بدن بولی۔ سلام کیا تھا، یہ مجرا کیا؟ 9 بہار تو زمین پر لوٹن کبوتر بن گئی۔ اری سلام نہیں، مجرا ابھی تک نہیں کیا تو بس سمجھ لے تیری خیر نہیں۔ دیکھ، پہلے خانم صاحب کے سامنے جا کے 3 بار خوب جھک کر سلام کر، ایسے۔ شبو نے سلام کر کے بتایا۔ سمجھی؟ چھمی نے من بھر کی منڈیا ہلا دی۔ ہاں، اور دیکھ پھر نہایت ادب سے لہنگا اٹھا دینا۔ سنوبر کھلکھلانے لگی۔ چپ رہو گدھیو، ہنسنے کی کیا بات ہے جی؟ اور دیکھ، مروے شونی ہنسنا نہیں، ورنہ یہ سمجھ لے کھود کے کہیں چوکی تلے گاڑ دیں گی۔ چھمی سمجھ گئی۔ زمرودی خانم، لونڈیوں کی دروگن، عصر کی نماز سے فارغ ہو کر مصلے پر بیٹھی 1000 دانہ پھیر رہی تھی۔ حور و قصور دماغ میں رچا ہوا تھا، نگاہوں میں تقدس اور چہرے پر دھڑیوں نور برس رہا تھا۔ ان کا سن بھی چھمی کا سا تھا، یوں گوشت کا پہاڑ تھوڑے ہی تھی۔ چھمی نے سلام کیا تو وہ عالم بالا کے تصور میں ہی کھوئی ہوئی تھی، مگر جب لہنگا اٹھا تو 14 طبق روشن ہو گئے۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ بنجر زمین پر آ رہی۔ کہانی یہاں بالکل دوسرا ہی پلٹا کھا سکتی تھی۔ شاید چھمی پھر جمن کے سر پر پٹک دی جاتی، جہاں پھر جوتے منڈلانے لگتے اور اودا خون بہنے لگتا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ کیچڑ میں سچا موتی رل رہا ہو
तो जौहरी की आंख धोखा नहीं खाती। छम्मी की मैल जमी टांगों पर सुनहरे रोंगटे देखकर जमरूदी खानम ने फौरन भांप लिया कि मोती कीचड़ में सना हुआ है। उन्होंने इशारे से छम्मी को पास बुलाया। लौंडियों बांदियों की घिग्गी बन गई। अब खानम झुककर सलीम शाही जूती उठाएंगी और फटकी फटकी करके छम्मी का भेजा दालान दर दालान छिटक जाएगा। नहीं, शायद बैठे बैठे उसके पेट में लात मारेंगी। खानम की लात में अरबी घोड़े जैसा जांटा था। लतीफ़ा के पेड़ू पर यही घोड़ी की लात पड़ी थी जो खून के इतने दस्त आए कि वो अल्लाह मियाँ के यहाँ ही चल दी। मगर खानम साहब ने ना अरबी घोड़ी वाली दुलत्ती झाड़ी, ना जरकार सलीम शाही संभाली। वो काली टांगों पर सोने के तारों की नक्काशी देखकर मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने उसे सब जगह से नापा टटोला, सब कुछ जमा जोड़कर 13वें साल की रकम से तकसीम किया। जवाब लाजवाब। खानम के हाथों से ना जाने कितनी बांदियां काट छांट के बाद हुस्नो जवानी के मुरक्का बनकर नवाब साहब की सेज को गरमा चुकी थी। क्या मार्के की निगाह पाई थी। पेट की लौंडिया को भी नाप तोल कर चुटकी बजाते में भांप लेती थी कि कोख में पद्मिनी बिराज रही है या कोई चुड़ैल पैर पसार रही है। नाप तोल से ये तो औरत बनती है। कूल्हे, कमर, सीना, बाजू, पिंडलियां, राने, गर्दन, हुस्न के मुकाबलों में जैसे पोर पोर नापी जाती है, बिल्कुल इसी तरह खानम की निगाहों का फीता काम करता था। हाँ, अब यहाँ से असल कहानी शुरू हुई। खानम साहिबा ने नूरन दाई को तलब फरमाया, उसे लेबॉर्ट्री यानी हम्माम तैयार करने का हुक्म दिया। पहला हंगामा तो छम्मी के जुओं भरे सर ने खड़ा कर दिया। उसका इलाज फौरन कैंची से कर दिया गया। खुश खासी बाल करने के बाद भी तालू से चमटी जुएं बिल्कुल छम्मी की तरह सख्त जान साबित हुई। धो फटक कर छम्मी चटाई पर फैला दी गई। आंखें और नाक के नथुने छोड़कर उसके बदन पर कोई कत्थाई रंग का लुआबादार मसाला थोप दिया गया। फिर उसे खौलते पानी से धोया गया। उसके बाद कोई दूसरा लेप चढ़ाया गया। छम्मी चुपचाप सिसकियां लेती रही। खानम साहिबा उसके कोफ्ते पका रही हैं। मसाला लगाकर छोड़ेंगी, फिर उसे सेखों पर चढ़ाकर अंगीठी पर सेका जाएगा, फिर कुत्तों को खिलाया जाएगा। हफ्ता भर छम्मी धुलती रही, छनती रही। उसकी नस नस फोड़े की तरह टपकती रही। 2 दिन बुखार भी चढ़ा। फिर लेप खत्म होकर मरहम चपड़े जाने लगे और छम्मी की टीसें कम हुई। हफ्ता भर गुजरने के बाद वो बिल्कुल पानी में फूटी हुई कंवल की कोपल की तरह निकल आई। इस अरसे में उसे दूध और शहद के सिवा कुछ खाने पीने को ना मिला। भूख के मारे वो बिलबिलाती रहती, मगर कोई सुनवाई ना होती। मोटी बीजड़ की रोटी और चटनी खाने वाली का नीनियों और शोरबों से भला क्या होता। 10-12 खरबूजे एक सांस में साफ कर जाने वाली सरदे की एक काश से क्या। एक दिन वो चुपके से शाही मतखब में पहुंच गई और इतना हबड़ हबड़ करके खाया कि 3 दिन तक दस्तों के मारे हलकान हुआ। फिर उसे मुसहल दिए गए जो शांदे और मुअज्जने चटाई गई और फलों के रस हलक में टपकाए गए। 6 महीने बाद खानम साहब ने उसे अपनी तर्जबा गाह से जब निकाला तो वह 14 साल की हो चुकी थी। उसका रंग काफूर की तरह सफ़ेद हो गया था। बाल कंधों को छू लेते अगर खमदार ना होते। अब उन्होंने उसे जैतून के तेल में डुबोकर जड़ी बूटियों में बसाए हुए पानी से बार बार धोया। साबुन के बगैर सिर्फ पानी की धार से तेल की चिकनाई छुड़ाने में जो मेहनत और वक्त सर्फ हो, उसका तो कुछ हिसाब ही नहीं। फिर घिसा हुआ संदल उसके अंग अंग पर मलकर पपड़ियां छुटाई गईं।
जायद बाल मोचने से उखाड़े गए। फिर उसे पिंडलियों पर चिपका हुआ कोरे धुले नैन सुख का आड़ा पजामा और शबनम का जरकार कुर्ता पहनाया गया। उसके बालों के छल्ले संवार कर कारचोबी टोपी लगाई गई। मोती जड़ी चौड़े गिरेबान की सदरी और तले की मोजड़ी पहनाई गई। जब छम्मी फूलों के गजरे ले नवाब बेगम के ख्वाबगाह में पहुंची तो वो ना हिली ना जुली, बस गुमसुम मखमली तकिए पर कोहनी टिकाए उसे देखती रहीं। गजनफर नवाब बड़ी मुश्किल से उनके होंठ सिसकी में हिले। मुजरे के बाद छम्मी ने दो जानू होकर गजरों का थाल अदब से पेश किया। कांपते हुए सहमे सहमे हाथ से उन्होंने सोने के छल्लों को छुआ। कनपटी पर सुनहरा गुबार सा लर्ज रहा था। कलीमे की उंगली बहकती हुई रुखसार के भूरे तिल को चूमती होंठों पर कांपने लगी। चरका सा लगा और उन्होंने कोहनी में मुंह छिपाकर एक आह भरी। गारत हो, उन्होंने आवाज घोंट ली। छम्मी के हाथ से फूलों भरा थाल छूट गया। खानम साहब ने झुककर उसे टहोका दिया और वो भद्द से बैठ गई। उंगली के इशारे से उन्होंने उसे दफान किया और फूल उठाने लगी। हुजूर, खानम साहब ने नवाब बेगम की पेशानी से लट हटाई। गारत हो, नवाब बेगम झलक पड़ी, मगर खानम साहब गरात नहीं हुई। वहीं पट्टी पर टिक गई और हौले हौले बेगम की पिंडलियां सूतने लगी। नवाब बेगम सिसकती रहीं। उन्होंने पांव झटक दिए। खानम साहब ने जिंदगी भूचाल के झटके सहकर गुजारी थी। वो जमी रहीं। लौंडी से खता हुई तो इसी दम गुलामों बांदियों को हुक्म दीजिए कि महल सराय के स्तून से बांधकर सरकारी कुत्ते छोड़ दिए जाएं, या हुक्म फरमाएं तो बांदी के संदूकचे में सिमे कातिल की कमी नहीं। एक बूंद इस जमीन के बोझ को दोजख में झोंकने के लिए काफी होगी। बेगम नवाब सिसकती रहीं, पांव ना झटके। मुझे शुबा हुआ था नवाब बेगम, अगर जान की अमान पाऊं तो अर्ज करूं। बेगम नवाब की सिसकियां तूल पकड़ने लगी। 15 बरस पहले नवाब हुजूर की भूली बात बनी, वो सांसें गिन रही थी। महल सरा की संगीन दीवारें थीं और नवाब बेगम की धड़कती हुई नब्जें। महलों के सारे शोबदे फीके पड़ चुके थे। नवाब बहादुर उन्हें चख कर कहीं और मुंह मार लेते। अला बला सब हड़प कर जाते। नई थाली सामने चुनी जाती। 2-4 महीने में उससे पेट में अफारा पैदा होने लगता। खट्टी डकारें आने लगती, फौरन दूसरी डिश का इंतजाम हो जाता। नवाब बेगम को इस बात की कोई शिकायत भी न थी, क्योंकि नवाबों का यही दस्तूर हुआ करता था। खुद उनके वालिद बुजुर्गवार के तोशादान में तो वलायत तक के मुर्गन तर माल आते जाते रहते। रजवाड़ों में उनके टेस्ट और पहुंच की धाक बैठी हुई थी। वैसे उनकी मुंह चढ़ी हबशी हलवा, सोहन की टिकिया, मबरूका को जो दर्जा मुयस्सर हुआ किसी को ना हो सका। मगर नवाब बहादुर तो गंदगी की पोट थे। उनके हैवानात की हदों को पार करते हुए प्यार पर बेगम का खून खोल पड़ा। नवाब बहादुर उड़ गए, वो भी उड़ गई। बेगम तीर तलवार पर उतर आईं और उनसे पर्दा कर लिया। अब वो उनकी ख्वाबगाह की तरफ नहीं फटक सकते थे। वैसे जश्न जुलूस के मौकों पर वो पेश पेश रहती, सजे हुए हाथी घोड़ों की तरह। नवाब बहादुर की जूती से वो अड़ गए तो चूल्हे भाड़ में जाएं। उन्होंने और निकाह कर लिए। जब तक बीवी हजम होती, ऐश बाग में रहती। जहां बासी हुई और जी से उतरी, महल सरा पहुंचा दी जाती। थोड़े दिन फुंकारती, बल खाती, फिर फन पटक कर चुप हो जाती। बेगम का रुतबा अपनी जगह। वो
उत्तरी कमान की फहरिस्त में दाखिल होकर महल के एक कोने में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा लेती। फिर किसी दूसरे के दिन पूरे हो जाते और वो भी आ जाती। इसके बाद उसे बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी। वैसे तो नवाब बहादुर की झूठन पर सारी रियाया पलती थी, मगर उनकी झुठाली औरत फौरन 7 तालों में कैद कर दी जाती थी। रिश्तेदार मिलने आ सकते थे, खाने पीने की इफरात, कपड़े जेवर के अंबार, लेकिन मर्द की बू बास से महरूम। कभी कभी पुरानी बीवी की कोई बात याद आ जाती, नवाब बहादुर उसे फौरन तलब कर लेते। निगोड़ी के खुशी से हाथ पैर फूल जाते। बाकी बदनसीब उसे बन ठन कर पिया की बाहों में जाने की तैयारियां करते देखती तो उन्हें हिस्टीरिया के दौरे पड़ जाते और खानब साहब अपना तिलिस्मी संदूकचा लेकर मदद को दौड़ती। बारहा नवाब बहादुर ने बड़ी बेगम को भी दावतनामा भेजा। कुछ अरसे से अपने पीर साहब के हुक्म पर वो बड़ी पाबंदी से बारी बारी सब बीवियों को उनका हक देने को तैयार थे, मगर बड़ी बेगम ने बड़ी गुस्ताखी से अपना हक ठुकरा दिया। 19 बरस की मजरूह सिसकती जवानी का पहाड़ उठाए दंदनाती चली जा रही थी कि खलेरे भाई गजनफर अली खां विलायत जाने से पहले शिकार विकार की धुन में रियासत में आ निकले। रिश्ते के भाई थे, 3 साल छोटे थे, हथ छुटवाक हुए थे। नवाब बेगम के छक्के चुरा दिए। क्या लहलहाते मुस्कुराते दिन थे वो भी। धमा चौकड़ी हो रही है, स्वांग भरे जा रहे हैं, आपा धापी मार कटाई से भी आर नहीं। हंसी है कि आबशार बनकर टूट पड़ती है। नवाब बेगम की सारी बेरुखी भूला हुआ ख्वाब हो गई। बचपन लौटकर हुमकने लगा। भौड़े भौड़े तमाशे होते। 4 लौंडियों को हुक्म दिया जाता, कर दो एक दूसरी को नंगा। जो जीतेगी सोने का कड़ा या जड़ाव हेकल इनाम में पाएगी। और पुल पड़ती नामुरादें एक दूसरे पर। वो घमसान मचती कि हंसते हंसते आंसू निकलने लगते। कपड़ों की धज्जियां उड़ने लगती, लहू लुहान हो जाती। अंजाम कार जिस्म पर बस पाजामे का नेफा और पांचों की मोरियों के छल्ले पड़े रह जाते। फिर हार जीत अलग रखकर सबको इनाम मिलता। जब गजनफर मियाँ हंसने पर आते तो उन्हें दीन दुनिया का होश ना रहता, गिर गिर पड़ते। बहुत ज्यादा हंसने पर बेगम नवाब के ऊपर भी आ गिरते और कभी बिल्कुल ही गडमड हो जाते। बड़ी मुश्किल से बेगम उनके पर्त उतार कर हटाती। शोखी शरारत तो उनकी आदत थी, बच्चा ही तो थे। जरा जरा सी मूछें फूटी हैं, वो भी शायद बार बार मूंदने से। सर पर ताज तो अल्लाह का रखा हुआ था। बिल्कुल मोहरों का कच्चा सोना सर पर ढेर था। दांत कचकचा कर नवाब बेगम सुनहरे गुच्छे पकड़कर हिला डालती। कुछ लिहाज ही नहीं सुअर को। हाथ हैं कि बिल्कुल दीवाने। ये खेल साहबजादे ने आंख खोलकर सभी को खेलते हुए देखा था। बांदियां आपस में नोचती, खसूटती, बाहर नौकर चाकर खुली खुली बातें करते। आती जाती का बुकट्टा भर लिया, कल्ला नोच लिया, कमर खसूट दी। साहबजादियां तो अलग थलग सेंध पर पाली जाती। हाँ, लौंडियां गोद ही में हथकंडे सिखा देती। वहां देखने टोकने वाला कौन था? गजनफर अली कोई गुस्ताखी कर बैठते तो लौंडियां ठट्ठे लगाने लगती। नवाब बेगम का दम लबों पर आ जाता। कभी घुड़क देती, कभी जानबूझकर अनजान बन जाती। मगर छीना झपटी से बात आगे बढ़ने लगती तो वो फौरन बंद बांध कर सिमट जाती और बाअदब बा मुलाहिजा हो जाती। उन्हें बेकायदगी से सख्त नफरत थी। चोटी गूंदने में अगर मांग में एक बाल भी इधर का उधर हो जाता तो बेकल हो जाती और सारी रात तकिए पर सिर पटकती। उनसे कभी कोई लग्जिश नहीं हुई। सुलगने की आदी थी, बड़कने की शर्त नहीं थी।
मगर गजनफर मियाँ ठहरे कल के लौंडे, धड़ धड़ जलने लगे। भूख लगे खा लो, प्यास लगे पी लो, नींद आए सो जाओ। उन्होंने यही सीखा था। बेगम की हदबंदियों पर आलिफ हो गए। निगाहें खींची तो अगाड़ी पिछाड़ी तोड़ाने लगे। चंद मुसाहिबीन की राय से इधर उधर शिकार के लिए चल दिए। बेगम की दुनिया उजड़ गई। महल सरा में मौत सी हो गई। जासूसों ने खबर दी कि साहबजादे चूड़ों चमारों पर मोती रोल रहे हैं। एक अदद मोती छम्मी की सूरत में अल्हड़ कुम्हारिन की कोख में जलवा अफरोज हो गया। विलायत जाने का वक्त आ गया और वो रुखसत हुए, लेकिन हवाई जहाज के हादसे में ख़त्म हो गए। बेगम ने बरसों चुपके चुपके मातम किया, मगर उस दिन उन्होंने गजनफर मियाँ को धुतकारा ना होता तो शायद ये मोती उनकी प्यासी कोख को सैराब कर देता। ये तो उनकी अमानत थी जिसमें अब खयानत हो गई। तो क्या छम्मी उनकी कोई नहीं? कोई रिश्ता नहीं? क्या किसी की मुर्गी जाकर दूसरे के डरबे में अंडा दे आए तो मुर्गी के मालिक का उस पर हक नहीं रहता? जीने के लिए इंसान कैसे कैसे हथकंडे चलाता है। महरूमियों और तन्हाइयों से उत्का कर तखय्युल की दुनिया बसा ली। जख्मी दिल ने मरहम चाहा और पा लिया, जैसे सीपी अपने जख्म को मोती बनाकर सीने में छुपा लेती है। लौंडी ने सोचा, आखिर अपना खून है। शागिर्द पेशे में नीच कमीनी औरतें उसे किसी कर्म का नहीं रखेंगी। हाँ, अपना खून है। नवाब बेगम को ये बात बड़ी प्यारी लगी। ऊपर से बरसों की दबी हुई ममता फट पड़ी। उन्होंने छम्मी को उठाकर कलेजे से लगा लिया। बेगम बादशाह जादी की तरह छम्मी के भाग भाग जग उठे। छम्मी से उसे शगुफ्ता बानो बना दिया गया। वही बांदियां जो लहंगा उठा उठाकर उसकी गति बनाया करती थी, आफताबा सल्फची संभाले उसकी खिदमत गुजारियां करने लगी। उसे नहलाती धुलाती कंघी चोटी करती। नवाब बेगम की राय से उसे गुड़िया की तरह सजाती और उसकी किस्मत पर रश्क करती कि काश साहिबजादे उनकी माओं पर मेहरबान हुए होते। शगुफ्ता बानों की आला पैमाने पर तालीम और तरबियत होने लगी। सलीका सिखाया जाता। वो बड़ी मुस्तैदी से हर काम पे जुट जाती, उसी तरह जैसे गांव में खुशी खुशी उपले थापा करती थी। बुनाई कढ़ाई सीखती। तीज त्योहार पर महल सरा सजाकर दुल्हन बनाई जाती। वो बांदियों के गोल में मिलकर महल सरा सर पर उठा लेती। सावन में झूले पड़ते। दिवाली पर चिरागा होता। मुहर्रम पर ताजिए रखे जाते। मजलिस होती। रैयत में अक्सरियत हिंदुओं की थी, मगर सब ही त्योहार धूमधाम से मनाए जाते। नवाब साहब हर त्योहार में जश्न में लाजिमन शरीक होते थे। नवाब साहब के हरम में लौंडियों बांदियों के अलावा 17-18 बीवियां भी थी जो कभी उनके निकाह में रह चुकी थी। शरा की रूह से 4 शादियों से ज्यादा नहीं कर सकते थे, जिनमें से नवाब बेगम को वो तलाक नहीं दे सकते थे, क्योंकि उनके भाई बहुत बारसूख और तबीयत के टेढ़े थे। इसलिए उनके अलावा 3 और निकाह में रहती। जब कोई नई दिल में बस जाती तो 3 में से जो सबसे ज्यादा पुरानी होती उसे तलाक दे देते और वो रोती पीटती महल सरा में पहुंचा दी जाती। उसे बाहर जाने या दूसरी शादी करने की इजाजत नहीं थी। 1000 पाबंदियों के बावजूद इधर उधर ठगी लगाने में भी कामयाब हो जाती थी। नवाब साहब के पीरो मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक वो सब बीवियों को हक़ जौजियत बारी बारी से बख्शते थे। रोज शाम को एक बीवी का बुलावा आ जाता। इसमें से बड़े जोड़ तोड़ चला करते। बाला बाला रिश्वतें चलती थीं। जो बीवी जरा कंजूसी करती, अहलेकार उसकी बारी गडमड कर देते। नवाब साहब बेचारे को तो ठीक तरह याद भी नहीं था
कि कौन सी निकाह में है। किसी बात पर अचानक किसी पिछली बीवी की हड़क उठने लगती तो नवाब साहब बेकरार हो जाते। अरे भाई, आज नूरी को हाजिर किया जाए। आलीजा उनको तो तलाक फरमा चुके। अमा नहीं। कब? सरकार, वो तीसरी बिटिया के बाद जब फिरोजा नवाब से अक्द फरमाया था। अच्छा, नवाब साहब को याद आ जाता। कोई मजाइका नहीं, नमक खवार तो है। और नमक खवार खुश खुश 16 सिंगार करके आ जाती और ऐसी पट्टी पढ़ाती कि अहमक नवाब बहादुर नंबर 2 को तलाक देकर उससे दोबारा निकाह फरमा लेते। ज़्यादातर निकाहों की वजह यह थी कि सब कमबख्त नवाब साहब को चढ़ाने के लिए लड़कियां ही पैदा करती थी। 3-4 लड़के हुए भी मगर जाते रहे। महल सरा में जब ये जश्न होते तो नवाब साहब तशरीफ़ लाते, दरबार लगता, इनामात तकसीम किए जाते, खिल्लतें बांटती। उस दिन एक से एक बढ़ चढ़कर सिंगार करती। बड़ी बेगम हुजूर आला हजरत के दाएं तरफ जलवा अफरोज होती। बाकी 3 में से सबसे चहेती बाएं तरफ, उसके बाद सब दर्जा बदर्जा बैठती। जश्न से पहले बड़े दंगे फसाद होते। बीवियां आने वाले दिन की तैयारियों में अपने मर्तबे का बहुत ख्याल रखती। छिपी ढकी नोक झोंक चलती। कभी इन मौक़ों पर कोई पुरानी बीवी एकदम से नई लगने लगती और उसका नाम फिर 4 बीवियों की फहरिस्त में आ जाता। बारी मुकर्रर करने का काम मुशीर कानूनी के हाथ में था। कुछ खानम साहब पर भी दारो मदार था। वो अगर कह देती कि तबीयत कसलमंद है तो बेचारी की बारी गायब हो जाती। उनके भी मस्का मारने की ज़रूरत हुआ करती थी। मेरे ख्याल में छम्मी की कहानी दरअसल होली के त्यौहार से शुरू हुई। ये होली थी भी पिछले सारे त्योहारों से ज़्यादा शानदार। इस धूमधाम की वजह ये थी कि रियासत में कांग्रेस का असर 1935 के बाद बहुत बढ़ गया था। कांग्रेस जो विदेशी राज का नाक में दम किए हुए थी और ब्रिटिश राज के फर्जंदाने दिल बंद में से नवाब साहब भी थे। कोई बेटा नहीं था, इस वजह से भी कुछ ख्वाहिश रखते थे। इसी की खातिर शादियों पर शादियां कर रहे थे और अभी नाउम्मीद होने की नौबत नहीं आई थी। कांग्रेस के जोर को कुचलने के लिए रियासत में हिंदू मुस्लिम कशीदगी का बीज बोया गया जो फौरन जड़ पकड़ गया। लेकिन खुद नवाब साहब पर भी फ़िरका परस्ती की शय पड़ने लगी। खुद नवाब साहब कतई फ़िरका परस्त नहीं थे। उन्हें खुद परस्ती से ही छुट्टी नहीं मिलती थी जो फ़िरका परस्ती के झंझट में पड़ते। नाच रंग और शिकार से अगर कभी मोहलत मिल जाती तो ब्रिटिश राज की सलामती की फिक्र कर डालते। उन्हें हर फिरके के लोगों से बेइंतहा प्यार था और हर फिरका उनकी रियासत में इत्मीनान से अपने धर्म का पालन कर सकता था। मुसलमान और हिंदू में वो कोई फ़र्क रवा नहीं रखते थे। दोनों ही उनके राज में कल्लाश थे। बल्कि मारवाड़ियों ने तो कुछ फैक्ट्रियां बना भी ली थी। मुसलमान बेइंतहा जाहिल और मुफलिस थे। ओहदेदारों में वो अंग्रेज़ के बाद हर उस शख्स से मरूब थे जो सरकारी कबीले का था और पेंशन के बाद उनकी रियासत में किस्मत जगाने आ जाता था। मोहब्बत के मामले में वो इंतहाई गैर जानिबदार थे। बीवियों में निहायत इत्मीनान बख्श तरीके से उन्होंने बगैर किसी तफरीक के सबको नवाजा था। कुछ प्रोपेगंडे की काट मंजूर थी, कुछ पुराना दस्तूर था। टेसू के फूल देगों में उबाल कर रंग तैयार हुआ। अबरक मिला, अंबर और गुलाल बड़े बड़े पीतल के थालों में भरकर चबूतरों पर सजा दिया गया था। रंगों की भरी नांदें और पिचकारियां इफरात में मौजूद थीं। कढ़ाव चढ़े हुए थे, हलवाई पकवान तल रहे थे और कहार डोलियों में रख रख कर महल सरा में पहुंच रहे थे। सारी खलकत रंग खेलने
और इनाम लेने के लिए टूट पड़ती थी। कमीनों की टोलियां स्वांग भरे नाचती गाती चली आ रही थी। महल सरा के लकोदक सहन में रियासत के आला अफसरों की औरतें, शाही खानदान की बहू बेटियां होली खेलने और तर माल उड़ाने में मशगूल थी। नवाब बहादुर भी महफिल की रौनक बढ़ाने की खातिर थोड़ी देर को जलवा अफरोज हो जाते। रैयत के माई बाप थे, उनसे कोई पर्दा नहीं करता था। सबको हाथ जोड़ जोड़ कर नमस्कार करते, रंग डलवाते और आंखें भी सेकने से बाज ना आते। इन मौक़ों पर लौंडियों बांदियों की खुरमस्तियां काबिले दीद हुआ करती थी। खूब नाच गाने, स्वांग और कुश्तम पछाड़ होती। मकसद नवाब बहादुर की तवज्जो पाना होता। ऐसे ही मौक़ों पर तो लौंडियों को बेगमें बनने के मौके मिला करते थे। रोक टोक के बावजूद छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानो इस तूफान रंगी में बिजली बनी चमक रही थी। सड़ांदी कीचड़ और गोबर से खेलने वाली छम्मी की ये पहली रंग बिरंगी महकती होली थी। 15वां साल लगा ही था, मगर जिस्म की उठान माहो साल का झंझट नहीं पालती। रंगों से भीगे कपड़े जिस्म से चिमट कर रह गए थे। कौसो कुजा बनी इधर उधर कुलांचे लगा रही थी। नवाब बहादुर के नथने फड़के, मानस गंध, मानस गंध। नवाब बेगम ने उनकी बड़ी बड़ी गिलाफी आंखों की नीयत पहचान ली। नवाब बहादुर की नंगी आंखों की गाली पर वो तिलमिला उठी। उन्होंने झुककर खानब साहब के कान में कुछ कहा। उधर नवाब बहादुर ने झुककर ख्वाजा सरा के कान में कुछ कहा और उठ गए। ऐश बाग में मरमरी हौज में लाल मछली तरारे भर रही थी। उसके आसपास के पानी शोले भड़क रहे थे। नवाब बहादुर की भारी आंखें रस घोल रही थी। छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानो ने ऐश बाग की ऊँगती उगताई फिजा को एकदम झंझोड़ कर जगा डाला। नवाब बहादुर की थकी थकाई आंखें एकदम चौंक कर ठट्ठे मारने लगी। ये चटपटी तुतिया मिर्च किस मर्तबान में सेंती पड़ी थी। उनका कामोधन तो उकताहट के फफूंद से उठ रहा था। ऐसी बेउज्र बेतकल्लुफ शाय उनके शाही दफ्तर ख्वान पर आज तक नहीं उतरी थी। सब ही कटी पिसी कपड़ छन की हुई माजून मुरक्कब बनी उनके हुजूर तक पहुंची थी। नवाब बहादुर हंसते हंसते लोटन कबूतर हो गए जब गिरेबान में हाथ डालने पर उसने चट से हाथ पर थप्पड़ टिकाया और फुंकारने लगी। वाह! बे-इख्तियार उनके मुंह से निकला। अरे भाई इधर आओ। उन्होंने मुसाहिबीन को दावत दी। जरा उसे तो देखो। उन्होंने फिर वही हरकत की और शगुफ्ता बानो ने अब के पैर की जूती निकाल के हाथ पर रसीद की। बदमाश! साथ ही खिताब भी अता फरमा दिया। यह हरकत अब तक उससे किसी मर्द ने नहीं की थी। मुसाहिबीन के दिलों की हरकत बंद होते होते बची, मगर नवाब साहब बहादुर ने सर पीछे झटक कर फरमाइशी कहकहा लगाया और मुसाहिबीन मुआमले की अहमियत को समझ गए। नवाब बहादुर इतना हंसे कि मन मन भर की आंखें सिवाय हो गईं। फिर चारों तरफ से हाथ चलने लगे और जूती चौमुखी मुदाफत करने लगी। उसकी उजड्ड किस्म की गालियों कौंसलों में भी बला की हलावत थी। फिर भी तनतना के खड़ी हो गई। हम जाते हैं, हाँ, उसने गुरूर से ऐलान किया। अच्छा बैठो बैठो, अब नहीं छेड़ेंगे, नवाब बहादुर ने पुचकारा। शहजादियों जैसे दिमाग हैं, दिल में सोचा। नवाब बेगम गैज़ो गज़ब की दीवार बनी पूरी महल सरा पर बरस रही थी। 3 बार दौरा पड़ चुका था। कलेजे में ज्वालामुखी दहक रहा था। लौंडियां बांदियां सूखे पत्तों की तरह लरज रही थी। खानम साहब दस्त बस्ता मुजरमों की तरह कदमों में सर रखे दे रही थी। कैसे ले गए? उन्होंने खानम साहब की चोटी मरोड़ डाली।
क्या अर्ज करूं, एक झलक तो मैंने देखी, फिर जैसे बिजली सी कौंदी, जैसे जमीन फटी और वो समा गई, या आसमान से गैबी हाथ उतरा और उड़ा ले गया। किसी ने जानबूझकर मेरी आंखों में अबीर झोंका था, वरना बंदी यूं हवास बाख्ता ना हो जाती। और जब मैंने आंखें मसल कर खोली तो वहां कुछ भी ना था। ड्योढ़ी पर किसी ने ध्यान भी ना दिया होगा, ना चीखी ना चिल्लाई। अब क्या होगा खानम? नवाब बेगम एकदम बह निकली। बाकिर अभी खबर लेकर आया है, चुहलें हो रही हैं, लेकिन मेरी सरकार, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? एक दिन तो ये होना ही था। ये किसी दिन भी नहीं होना है। बेगम तमतमा उठी। सोने का डला बनी छम्मी मीना की तरह चहक रही थी। उसने हजारीन की तमाम अंगूठियां जीतकर पोर पोर पर टिका ली थी। अब अशरफी का खेल हो रहा था। खिलाड़ियों में से एक उसे अशरफी चुटकी में पकड़कर दिखाता, और जब वो अशरफी लेने लपकती तो चुटकी खुलकर अशरफी खिलाड़ी की गोद में डूब जाती। छम्मी अशरफी की खोज में हाथ मारती और मुगलिज़ात में लिथड़े हुए कहकहे गूंजने लगते। वो बड़ी बड़ी हैरान आंखें खोलकर हंसने वालों को देखती। मुहज़्ज़ब किस्म के ऊंचे मजाक उसकी समझ से ऊपर निकल जाते। ये नासमझी ही तो सारा लुत्फ पैदा कर रही थी। जब कोई इंतकाम लेने का कसद करता तो वो जूती संभाल लेती और महफिल लोट पोट हो जाती। नवाब बहादुर तो रोज हैरत जगा करते थे। जब पौ फटने लगती तो हैंगन बाई भैरवी के मुकद्दस सुरों में कोई गज़ल या ठुमरी छेड़ देती और सरकार की रगों में नींद उतर आती। जगाने का राग उनके कानों में लोरी बन जाता। मगर आज छम्मी की शौखियों ने महफिल जमने ही ना दी। दिन भर की झंझोड़ी हुई तो थी, सर चौकी के पाए लगा तो पट से सो गई। एकदम महफिल पर सन्नाटा छा गया। बारहदरी में एक एक करके सब शमाएं गुल हो गईं। शबनमी पर्दे छूट गए, बज़ाहिर तखलिया हो गया। छम्मी ने ढीली अंगूठियों को गिरने से रोकने के लिए मुट्ठियां बांधकर थोड़ी के नीचे रख ली थी। नवाब बहादुर ने अपना भारी पैर उसकी छाती पर धरा और जगाना चाहा, मगर वे मुर्दे की तरह बेहोश पड़ी रही। उन्हें उसकी ये गुस्ताखी बड़ी पसंद आई। जैसे भूखे को हबड़ हबड़ खाते देखकर भूख लगने लगती है, इसी तरह छम्मी की अलहड़ नींद का जादू उन पर भी चलने लगा। बरसों बाद वो सहर से कई घंटों पहले ही मसनद पर ढेर होकर सो गए। दस्तूर के मुताबिक आला हजरत के बेदार होने से पहले ही बारहदरी की सूरत बदल गई। रात के मसले हुए, फूलमय छम्मी के झाड़ दिए गए, दबीज पर्दे छोड़कर बिल्कुल बंद कमरा बना दिया गया। जब छम्मी सर से पांव तक सोने और जवाहरात में डूबी, आंचल में अशरफियों के तोड़े और पोर पोर अंगूठियां पिरोए नवाब बेगम के हुजूर में पेश की गई, तो वो आंखों पर कोहनी का तिकोन खड़ा किए बेकल सी पड़ी थी। छम्मी ने छनकता हुआ मुजरा किया तो आंखें खोलकर देखा और तड़प कर उठ बैठी। छम्मी उनके लाड प्यार की ऐसी आदी हो चुकी थी कि उसने उनके तेवर ना देखे। अपनी धुन में रात के तूफानों की तफसील बयान करते हुए वो कहीं उनके कदमों के पास बैठ गई। बेगम नवाब ने चोटी पकड़कर उसका सर ऊंचा किया, फिर उनके हाथ कांटों की तरह उसके वजूद को खुरचने लगे। एक एक कर जेवर उन्होंने पैरों तले मसल डाला, कपड़े तार तार कर दिए और फिर इतने तमाचे लगाए कि उनके हाथों में खून छलक आया। फिर लात मारकर उन्होंने उसे दूर गिराया और उन पर हिस्टीरिया का शदीद दौरा पड़ गया। जब खानम साहब ने आकर इत्तला दी कि शगुफ्ता बानो वैसी ही साबित लौट आई है जैसी गई थी, तो वो दोबारा जिंदा हो गई। उन्होंने उसे बुलाकर उसके सूजे हुए मुखड़े पर अपने नरम रेशम हाथ फेरे,
संदूकचा मंगाकर उनसे दोगुनी दे दें। अपना ढेरों जेवर अपने हाथों से पहनाया और ढीठ छम्मी खी हंसने लगी। बड़ी देर तक खानम साहब से सर जोड़कर मिसकोट होती रही कि अगर शाम को सरकार ने उसे फिर याद किया तो क्या बहाना बनाया जाए। निस्वानी मजबूरी का बहाना चंद रोज चल जाएगा, फिर क्या होगा देखा जाएगा। शाम हुई और सरकारी मोटर आ धमकी। बेगम ने फरोज़ा को, जो उन्हें बेहद प्यारी थी, बना सवा कर रवाना कर दिया। उसे हर तरह की ताकीदें कर दी गई, मगर फरोज़ा उल्टे पैरों रोती पीटती आ गई। नवाब बहादुर किसी झांसे में आने को तैयार नहीं थे। इसी दम ऐलान जंग हो गया। नवाब बेगम ने खुली बगावत पर कमर बांध ली। चाहे हश्र हो जाएगी, मगर वो अपने आला खानदान के मुकद्दस खून को मोरी में लुढ़ाने को तैयार नहीं। पहले तो सवालो जवाब दोनों तरफ से अहलकारों के जरिए चलते रहे। नवाब बहादुर बेगम नवाब को समझा समझा कर हार गए, मगर वो अपनी हट पर कायम रही। नवाब बहादुर ने उनके खून की इज्जत अफजाई की गरज से निकाह के कसद का भी जिक्र फरमाया, मगर नवाब बेगम टस से मस ना हुई। मुसाहिबीन ना जाने क्या क्या जतन करके सरकार को बहलाए हुए होते, मगर छम्मी के बगैर शाम उन पर बड़ी भारी गुजर रही थी। इशा की नमाज के बाद तो नवाब बहादुर बिल्कुल ही बिखर गए। नवाब बेगम के ज़्यादातर जवाब उनके कानों तक पहुंचते ही नहीं थे, बस तरह तरह के बहाने बनाए जा रहे थे। किसी में इस गुस्ताखी की हिम्मत न थी। बिद के हुए घोड़े की तरह बहलाया जा रहा था। वो तो खैरियत ये हुई थी कि नवाब बहादुर को छम्मी का नाम नहीं याद रहा था। वो बस तड़प तड़प कर उसकी तफलीस बताते थे। हरामजादो, वो जो नन्ही सी जूती दिखा रही थी, जिसने थूक दिया था, वही। वो अहमकों की तरह बताते और मुसाहिबीन निहायत मुस्तैदी से फौरन तामील हुक्म के लिए दौड़ते और जूती वाली के बजाय किसी और आफत की परकाला को पकड़कर हाजिर खिदमत कर देते। नवाब बहादुर चमचमाती हुई बोझल आंखों से उसे देखते और फिर दहाड़ने लगते। ऐश बाग में एक कयामत बरपा थी। सबके सुरों पर मौत मंडरा रही थी। तरह तरह के झुंझुने बुझाए गए, बंदर नचाए गए, मगर आला हजरत किसी घस्से में आने को तैयार न थे। नाम उन्हें कभी किसी औरत का याद ही नहीं रहता था। उसके जिस्म के टुकड़े याद रह जाते थे। लोगों ने उन्हें बेवकूफ़ बनाने की भी कोशिश की। ऐ कुर्बान तन शूम हजूरे वाला, कल तो तरफा ही हाजिर खिदमत हुई थी। तरफा को हाजिर किया जाए, वो दहाड़ते, मगर जब एंडती बल खाती तरफा उनकी आगोश में उंडेली गई तो वो बेहिसाब दुलत्तियां झाड़ने लगते। तरफा और इसकी लवाहिकीन की खूब जूतेकारी हुई और फिर वो छम्मी के लिए एड़ियां रगड़ने लगे। जब सबकी जान सूली पर टंग गई तो अंजाम कार उसके सिवा और कोई चारा ना रहा कि असल सूरत हाल से नवाब बहादुर को आगाह किया जाए। जब हुजूर वाला को ये मालूम हुआ कि वो फितना रोज़गारे उल्या हज़रत नवाब बेगम की निहायत चहेती मुँह बोली बेटी है और शाही ख़ानदान से है, तो वो थोड़ी देर के लिए लचक कर रह गए। नवाब बेगम के मायके से वो कन्नी काटते थे। उनके दोनों साले इंतहाई खूंखार किस्म के थे, मगर फिर खुददारी उमड़ने लगी। अच्छा, तो नवाब बेगम से टक्कर है। दिमाग पर बहुत जोर डाला। बेगम की कोई वाज़ह सूरत याद ना आई। बरसों की बात थी। बेगम ना जाने कितने साल से उन पर भरपूर नज़र डालना ही छोड़ दी थी। जश्न जुलूस के मौके पर वो पत्थर बनी उनके पहलू में बैठी रहती और नवाब बहादुर की नज़रें बादा पैमाई में मसरूफ़ रहती। जब नवाब बहादुर की सवारी पहुंची तो बेगम नवाब का दिल बुरी तरह धड़क रहा था। जब नवाब दूल्हा बारात लेकर आए थे तब भी इस तरह दिल नहीं धड़का था।
यूं भी बड़ा फासला था इन दो सड़कों में। बारात के वक्त अरमानों और उमंगों की शहनाइयां भी तो हम आहंग थी। आज सिर्फ नफरत और हकारत का तूफान खोल रहा था। जाने मन एक फजूल और बेबुनियाद किस्म के वहम की बिना पर आप हमारी दिल शक्नी पर तुली हुई हैं। ये भी कोई बात हुई कि जितने काले मेरे बाप के साले। रियासत के सारे हरामी पिल्लों से आपका खून का रिश्ता जोड़ने पर उधार खाए बैठी हैं, तो इतना समझ लीजिए कि हम भी अपनी जिद के पक्के हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि आपकी हठ धर्मी हमारी सुबकी का बायस हो रही है। हुजूर यकीन फरमाइए, मैं मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। बेगम ने अदब से सर झुकाकर कहा, यह लौंडी का वहम नहीं, हकीकत है। विलायत सिधारने से पहले गजनफर मियाँ ने इल्तिजा की थी, खुदा उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये नुक्ता बड़े सोच विचार के बाद खानम साहब ने उन्हें समझाया था। वल्लाह, मजाक फरमा रही हैं बेगम। अरे वो कमसिन नाजुक इंदाम छोकरा हटाइए भी, वो तो खुद ही माशूक था। कता कलामी होती है सरकार, मगर मरहूम की शान में ऐसे कलमे आप जैसे बावकार हाकिम को जेब नहीं देते। बेगम की आंखों में लावा खदबदाने लगा। हमारा मतलब है वो तो खुद ही बच्चे थे, मसें भी तो ना भीगी होंगी। ये हवाई जहाज़ों का सफ़र, तौबा तौबा। नवाब साहब फौरन ढीले पड़ गए। खैर बेगम, जिद छोड़िए और किबला-ए आलम, ये मरने वाले की आखिरी वसीयत का सवाल है। उनकी रूह को चैन नसीब ना होगा। मैं हश्र में उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगी। हम जानते हैं कि ये सब हमें जख्म पहुंचाने के लिए शोशे छोड़े जा रहे हैं। नवाब साहब झल्ला उठे। और फिर हम उसे बांदी नहीं बना रहे, हम उसे निकाह में लाएंगे। नवाब साहब होंठों पर ज़बान फेरने लगे। निकाह? मैंने उसे बेटी कहा है और वो मेरी बेटी है, आपकी भी बेटी हुई। ये गुनाह अजीम। बेगम की आंखों में शरारे लपकने लगे। निकाह जायज़ ना होगा। लाहौल बिल्ला कुवा, ये किस मरदूद का फतवा है? क्यों सता रही हैं बेगम? आपने बेटी कहा तो वो हम पर हराम हो गई। कौन सी शरीयत के हुक्म से? मेरी ज़बान के कौल का पास आप पर भी उतना ही वाजिब है जितना मुझ पर। लावा खदबदाने लगा। उससे निकाह फरमाने के लिए मुझे तलाक देनी होगी। आप जानती हैं बेगम, हम ऐसा नहीं कर सकते। आपके बिरादर अजीज हमारे खून के प्यासे हो जाएंगे। सच्ची बात कहिए बेगम, इस बुढ़ापे में भी सोतिया डा। तौबा कीजिए हुजूर, अगर अगली पिछली सौतों का डा करती तो बंदी कभी की खत्म हो चुकी होती। ये ना होगा, यही होगा। नवाब बहादुर पूरे जलाल से खड़े हो गए। आज शाम को बाद नमाज मगरिब। आलीजा, ऐसा जुल्म ना कीजिए। आपको क्या कमी है? मेरी सूनी गोद का मान कीजिए। बेगम, हमें इतना जलील ना कीजिए। एक छोटे से वहम की खातिर हमारा दिल चकनाचूर किए देती हैं। हम मानते हैं कि उसकी रगों में आपका खून है। हम उसका मान कर रहे हैं। हम निकाह करेंगे, और अगर खुदाए बरतर की इनायत और मेहरबानी से इसके बतर से नर बच्चा पैदा हुआ तो हमारी देरीना मुराद बर आएगी और हमारा वली अहद होगा। कमाल फरमाते हैं आलीजा, कल तो वो मुसाहिबों और पापोश बरदारों के लाशें जगा रही थी, चौबदार उसकी बोटियां मसल रहे थे, तेरी मेरी गोद में हुमक रही थी। आज उसे निकाह का मर्तबा अता फरमा रहे हैं। बेगम बाज ना आई। कल की रंग बिरंगी याद कहकहा बनकर नवाब बहादुर के हलक से छलक गई। कहर है बेगम, एक कयामत है, जालिम ने हमें कहीं का ना रखा। कहाँ है? ज़रा बुलाइए तो अपनी लाडली को। अच्छा रहने दीजिए, ये हिज्र के लम्हे भी बड़े मज़ेदार हैं। क्या हम एक नज़र देख भी नहीं सकते? अल्लाह कसम, दूर से, बस हाथ ना लगाएंगे। मगर बेगम की आंखों में उबलते हुए तूफान ने उनकी जिंदा दिली पर ओस डाल दी।
ये उम्र इस पर चौंचले। मगर नवाब बहादुर सन्नी को टालकर रुखसत हो गए। अगर खानम साहब ना समेट लेती तो बेगम नवाब रेजा रेजा हो जाती। उन्हें सर पैर का होश ना रहा। कलेजा थाम कर वहीं ढेर हो गई और कटी मुर्गी की तरह फर्श पर लौटने लगी। ये नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा, मेरे जीते जी नहीं होगा, नहीं होगा, कुर्बान जाऊं मेरी शहजादी, नहीं होगा। खानम साहब की आंखों में सूरज जगमगा उठे। दालान दर दालान में जर निगार जोड़ों और जेवरात के थाल यहाँ से वहाँ तक चुने गए थे। बांदियाँ छम्मी उर्फ शगुफ्ता बानों को धो फटक कर इत्र के पानी में बिसार रही थीं। मेहंदी रचे लाल लाल तलवे और हथेलियाँ देखकर छम्मी किलकारियाँ मार रही थी। उसका ब्याह हो रहा है। जब दुल्हन सज धज कर तैयार होगी तो छम छम करती नवाब बेगम की कदम बोसी को हाजिर हुई। उन्होंने बड़ी हसरत से उसे सर से पैर तक निहारा। एक त्रिशूल सा कलेजे में उतरता चला गया। गजनफर अली खां के अक्स पर एक और नन्ही सी तस्वीर सपर ममोज हो गई। एक ना सही दो घाव सही, जब दिल ही कीमा हो चुका हो तो नए पुराने सभी जख्म एक हो जाते हैं। पास बिठाकर नवाब बेगम ने उसे बड़े प्यार से छुआ। दिमाग में तूफान खोलने लगा। खानम साहब ने मिठाई की तस्तरी पेश की। उन्होंने बच्ची का मुंह मीठा कराया। बदनसीब ससुराल जाने के लिए बेकरार थी। जब छम्मी दुल्हन आपे के नशे में झूमती चली तो उसके पांव बहके बहके पड़ रहे थे। गंगा जमनी झमाझम करती पालकी में जब वो सवार हुई और सुर्ख शबनबी पर्दे छोड़ दिए गए तो सारी महल सरा की लौंडियों के कलेजों पर सांप लौट गए। बेगम ने अपनी कोनी का तिकोन बनाकर आंखों पर खड़ा कर लिया और सिसकने लगी। बड़ी धूमधाम से दुल्हन की सवारी दुल्हा की चौखट पर पहुंची। पालकी बीच बारादरी में रख दी गई। नवाब साहब का दिल मस्त हिरन की तरह कुलांचे भर रहा था। कमसिन दुल्हाओं की तरह ठंडे पसीने छूट रहे थे। बस अब कोई दम में शबनमी बादलों के दरमियान ये बिजली तड़प कर निकलेगी और खिरमने हस्ती को फूंक देगी। मोहरियों ने पर्दे उठाए, न बिजली तड़पी न शोला लपका। ढीली अंगूठियों को उतरने से रोकने के लिए उसने कस के मुट्ठियां भींच ली थी। सुकड़ी सिमटी पालकी के कोने में दुबकी बैठी थी, जैसे अचानक पल भर के लिए ऊँघ गई हो और अभी जाग पड़ेगी।